So let's jump right into it. So Ali, I want to ask you first. So your opinion about, so what's the thought behind that spawns the willingness to build a product? वो thought क्या है एक entrepreneur की, किसी product designer की, that moves them to build a product? Cool. Thank you so much, Yasif, for the introduction, first of all. Good to be here, everybody. So basically, like the way, as Yasif bhai mentioned, like I've built startups, I've built products from the ground up. I consider myself very entrepreneurial in nature, and I think I I've read about these things and I've had my own experiences. And what I know from my own experiences and what I felt is, I think it's your, as a human, you observe things around the world, right? And you see problems, and then it's your drive, it's your passion to actually like figure out solutions to the problems that you see around yourself. I think that's what has fundamentally driven me to think about products, think about solutions. And I think that's fundamentally what, in my opinion, like is the basis for great products. So you have to observe things around you. You have to feel about a problem, and then you have to bring your own take towards finding a solution to that problem. Right. Faisal, if I build on this, what Ali has said, so what do you think a personality trait? वो कौन सा personality trait है that people need to kind of like be on this path and that Ali mentioned? Now, which Faisal is this? So this is Faisal Sherjan. So I think I should, Okay. yeah, FSJ. I should call you FSJ from here onwards. So Just abbreviate me to FSJ and it'll be simpler. Yeah. All right. I think what Ali has said is absolutely dot on. So, I mean, Shahid is also in there. Shahid Khan is there. So I remember, kind of attending one of his workshops on design thinking, right? I think almost about 4 years ago, no, near about 4 years ago. And I've learned one thing from Shahid, that entrepreneurship is only and only about empathy, right? So it is really about, it's not about yourself. It's not about what you think you're going to do. It's not about what product you're going to make. It is about what somebody needs. It's about, what is required out there in the market. And the market is nothing more than your customer. So it is really about, what a pain point that is actually bothering somebody so deeply that they need a solution. And recently I came across a term that Sequoia has coined, which says find somebody with their hair on fire. It's literally that. You've got to find customers, or you've got to find somebody whose hair is on fire, and then develop a solution, which you may call a product or a service that can actually help put out that fire. फैसल, मैं अगर आपसे पूछूं कि वो पर्सनालिटी ट्रेट, इज इट, सो एम्पैथी है, एम्पैथी क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट है, is it something you learn, is it something you acquire, or is it something you're born with? How do you improve yourself when it comes to being more empathetic towards your surrounding? Now that's Faisal Hanif. Okay, got it. Okay, I was confused too. I'm going to call Faisal FSJ from here onwards. So yeah. Got it. Okay, that will make it simple. So I think overall, first of all, you have to look at the what is the unique problem, right? So what is the problem you're trying to solve? And when it comes to the empathy, you have to put yourself in the user's shoes and see what the problem the user is facing, and also, is that a unique problem that needs a solution for? Is there enough market out there? What is the addressable market? I mean, the addressable market, sometimes it gets confusing, where you look at the addressable market. Okay, it's a $10 billion market. It's a huge market, but is that something that you can go and address? So that's very, very important or very key to figure out, like, what is the unique problem that you're trying to solve, and is that something where you have the team that can bring a product or solution to the market, and if there is a big enough market for that particular product or solution.
So So that's a great point. So Shahid, I want to, I think I always ask you this question, and I'll ask it once more. Putting yourself in your customer's shoes. Uh, so we have a lot of myths when it comes to product developments, and one of those myths perhaps is all those eureka moments that people talk about. Okay, I now know okay मुझे क्या बनाना है अपने customer के लिए. So putting yourself in customer shoes, and can you talk a little bit about those eureka moments that we think brilliant product designers keep on having on regular basis that helps them design products? So, Shahid, you're on mute, so you'll have to unmute your mic. Eureka moments are the greatest myth that ever happened. It's all bullshit. Anybody who claims to have a Eureka moment is seriously mentally deficient. Let me tell you a story. It just happened yesterday. I'm not going to name which organization. 3 people got together to construct a solution from existing products, and they wanted some kind of a facilitation to come up with ideas. So my first question was, which customer have you talked to? Oh, no, we don't need to talk to them. Well, why not? Because we know the problem. I said, okay, have you ever worked in that position? No, but I know the problem. So they're going to make a mistake. It's going to be about $7 million mistake. I know they will come back to me because I refuse to help them with ideation in a vacuum. You have to go and live, empathize, talk to the customer, not about your idea, talk about their life. Ask them what makes them happy, what makes them sad, and then gradually move into the task you think there's a problem there. So anybody who claims to develop product, I feel sorry for you without talking to the customer. I really do. And I have done my share of those mistakes too. So the third part, Yasser, what makes an entrepreneur? I think there are 5 characteristics that I look for. Number 1, he has to be world's best listener, not talker, listener. That means they are listening 90% of the time and talking 10%. Second one, somebody who loves to learn constantly. Number 3, very important, humility, humbleness, because if you're not humble, you're not going to be listening very well to your customers. Number 4, playful. And number 5 is really wired to take action, not hypothesize for a year or 2 years, really try something out. So I don't think I answered your question the way you wanted it, but here's my response. Yeah, I think you have answered a couple of more questions that I was planning to ask. So, but we'll circle back to this. So coming back to you, Ali, before we get more into the mistakes that people make and how do and where do we involve what particular skill or what particular framework in a product life cycle, how can you quickly define for us what actually product market fit is that we keep talking about? Yeah, so basically, a very simple way to think about it is okay, those situations. There's a situation where you don't have a product market fit, and then there's a situation where you have a product market fit. So in the first situation, what is happening is you're constantly doing something, you're making effort, but your sales numbers are not going up. Your customers are there's no virality. Customers are not talking about your product. You have to constantly like put in more effort, more money to get the next set of customers. तो एक इस साइड पे ये एक happening है, and then there's another world where you just can't meet or cope up with the demand that you're having. You constantly have to hire more sales people to go after your customers. You have to people are reaching out to talk to you about your products, about your product and market, and you have to basically like catch up with the demand, both in terms of like giving customers a product, but also like building new features that the customers are asking for. I think ये दो clear different worlds हैं. एक में product market fit नहीं है और दूसरे में product market fit है. तो basically once you get into a state where this set of things is happening to you or around you on your product, so you found the product market fit. That's how I think about it.
So FSJ, Shahid talked about some personality traits in entrepreneurs, and he also gave an example about, and there's a very particular question he asked in that example, that were you close to, or were you in it in terms of assessing a need? Were you part of that conversation on that problem or that cycle of daily routine that made you think this product is needed? Where exactly do you start from when you want to sort of like build towards a product market fit, or you want to naturally land in a place where you have a product market fit? What's the first thing you need to do? I think it starts from when you as an individual start to feel the need that you want to do something in life. The reason why you want to do it, right? You have, let's say, a set of skills, you've got some experience, and you're observant. You look around you and you see. The problem could actually be with yourself alone, right? Or the problem could be in your home, could be in the small community that you live in, right? From there, this sensitivity is the first thing. That's the kind of the first dawning of anything, that you're sensitive towards something. And you start to think of it and say, this is a problem that I would love to solve, right? That I can solve. And I start to think about it. That's when I start to ask more questions. That's when I start to reach out to those people, to those customers, or to that one customer that I've identified who has a problem, and then see if that same problem affects 1,000 others, 10,000 others, 100,000 others, a million others, right? So you start to think of it that way, and like Shahid emphasized, you start to listen, you start to ask questions, you start to know them, you want to know more about them, you want to know whatever problem is there, what could possibly be the best solution that you can devise. And from there onward, then start to think and say, if I actually devise this solution, what benefit will it offer to this particular customer or this particular segment of customers? So segmentation is again that very important thing. I must understand, how many people does it really affect? Right? Is the problem big enough? And if it's big enough, right, then I start to think of it and I start to really ideate and say, are there any possible solutions? And do I have the best solution for this problem? Right? So it is about observing, about sensitivity. It's about that moment when you feel the compelling need to understand that problem more, to reach out to that customer more, to listen to them more. So शायद इस पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. हम बात करते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट की या कस्टमर सेंट्रिसिटी की, और हम बात करते हैं मेथडोलॉजीज की, और फिर हम बात करेंगे कि नंबर्स की, एंड बट दैट इस तरह से हम प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रहे होते हैं. बट जब अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ऑल ऑफ इट साउंड्स लाइक अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन विद द कस्टमर. हाउ डू यू ब्रिज दिस गैप? मतलब कैन यू एक्सप्लेन दिस अ बिट फॉर अस? मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि आप सब लोगों ने टोटल अवेलेबल मार्केट के नंबर बनाए होंगे, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट के नंबर बनाए होंगे. अगर कोई नंबर आपने एग्जैक्टली ट्रैक किया है तो मैं आपको अपनी नई 20 साल पुरानी कार डोनेट कर दूंगा. All that TAM SAM is all crap. It has never come to fruition. You would be lucky even if you get 10% of that TAM and SAM. And here's why. कि जब आपने प्रॉब्लम शुरू डिस्कवर कर, स्पेशली इन द एंटरप्राइज स्पेस, मैं एंटरप्रेन्योर्स की तरफ बाद में आऊँगा, हमारा ये होता है कि रिसोर्सेज हैं, ये है, हमने टैम किया, सैम किया और फलानी रिसर्च को बुलाया, लेकिन कस्टमर के साथ जाके उनका जो एक्चुअली टास्क्स हैं, चाहे वो 1 दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, रेयरली कोई करता है. मिसाल के तौर पे एक मेरा कॉलीग है न्यूयॉर्क में, तो वो एक कंपनी के साथ काम उन्होंने किया, तो वो ट्रक स्टॉप्स बनाए हुए उन्होंने, वो जो हैवी फ्रेट ट्रक्स होते हैं. तो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, तो अब उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि तुम किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हो, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट गए हो 3 या 5 दिन में? कि नहीं. मैंने कहा अगर उसके साथ बैठ जाओ, क्या पॉसिबल है कि तुम कुछ नई चीज़ें पता चलें? कहता मुझे तो आइडिया नहीं उसकी लाइफ कैसी है.
तो मैंने कहा maybe this is something you should do. अगर तुम्हें solutions ढूंढने हैं. तो living in the life, you literally आपने उनके साथ time गुजारना है. 1 घंटा नहीं गुजारना. क्योंकि 1 घंटे में ये होता है आपके ऑलरेडी दिमाग में आइडिया, आपने सवाल पूछे नहीं जी आपकी प्रॉब्लम ये एक्सेल शीट में कॉपी एंड पेस्ट आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं, सडनली योर शट. ऑन द अदर हैंड यू से कि आपका टास्क क्या है, आज पूरा दिन क्या करते हैं. मेरा टास्क ये है कि मैंने फोरकास्ट प्रोवाइड करनी है. आपने फोरकास्ट क्यों प्रोवाइड करनी है? वो इसलिए कि मेरा जो फाइनेंस का ग्रुप है उनको प्रोजेक्शंस करनी है. उनको प्रोजेक्शंस क्यों करनी है? वो इस वजह से उन्होंने बजट बनाना है. बजट किसने बनाना है? सीएफओ ने बनाना है. और सीएफओ बनाता है उसको कौन अप्रूव करता है? सीईओ अप्रूव करता है. तो ये जो गहराई में जाकर मालूम करना उनकी एक एवरेज जिंदगी क्या है जिसमें एक वो टास्क करते हैं. और एंटरप्राइज वर्ल्ड में आपको बता दूं कि देयर आर लेस देन 5% ऑफ द कंपनीज हु आर डूइंग इट. One company that is doing pretty well is Nestle. Not Nestle Pakistan, but Nestle specifically in Europe. वो इस methodology को कोई 6 साल से follow कर रहे हैं और their market share has continues to go up and they continue to go into adjacent areas using the same methodology. I think this is probably the right point to ask one of the questions from the audience, and I'll मैं इस पे अभी शॉर्टली आता हूँ. बट से पहले फैसल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप यू आर फ्रॉम ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एक कॉर्पोरेट के अंदर हाउ डू यू हैव योर हैंड ऑन द फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ द कस्टमर नीड जब आप इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाइन चला रहे होते हैं और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं. And obviously, you do a lot of market sizing. I do feel like a Pakistani news anchor when I ask this question. Okay, what's your reaction to what Shahid has just said? I think Shahid bhai is absolutely correct. So, so just to give you a little bit background, I have actually. Faisal, don't try to be nice. We know each other. Yeah, I know. Be as blunt as So I have attended one of his session almost like 10 years ago here in the Silicon Valley. So that was actually my first time meeting Shahid bhai almost, I think 10 or 12 years ago. It's been a while. So I've known him for the years and he's pretty much spot on. I mean, looking at the corporate life or looking at when you're working for especially the large companies, one of the things that you're always dealing with is a firefight. So there is always something going on. There's escalations. There are so many things going on that there is instead of being focusing on the strategy, you're always trying to you're always in a firefight. So that's trying to put out the fires. So that's one thing which is always there's only limited number of time that you have in a single day, and but besides the point, like looking at, I have worked with in the corporate world, and I also advised startups. I've been in consulting roles as well in the last few years. Been in the consulting world for almost 2 or 3 years. And one thing that I have observed, especially working with these small startups, when I'm talking about the startups, very early stage startups, which where the founders are just taking off. They have a concept and they're just planning to take a product to a market. So with those early stage startups, one thing that I have always focused on with them is to find the unique problem. Go and same thing that as Shahid bhai has said, put yourself in the shoes of the customers, find the customer persona, and that's when you there's always, like nowadays we're living in the world of data. There is a lot of data, but sometimes data is also dangerous because you can, if you already have an outcome in your mind, you can find the data to satisfy whatever you're trying to do, right? So that's also have to be very subjective. In the data-driven world, you can always make mistakes when you are looking at all this data that's coming at you. So there's no shortage of data. There's a lot of data. And as I said, like looking at the corporate side, there are always, you're always figuring out a way to, from the go-to-market perspective, or if it's taking the new products to market, it's always finding the unique problem
when you're finding the unique problem, and especially because your question was in the large enterprise or large corporation, it's the same. The process is pretty much the same, whether it's the large enterprise or whether you're working with the early stage startups. You're always looking at the what is the problem, and then after that, what is the solution? What is the uniqueness about in your solution? How does this is bringing in the distinctive competence, or you're leveraging your distinctive competence in this case, and looking at the market, like the segmentation. I think everyone talked about the market segmentation that you're targeting, and what the market segment you're not targeting. You have to be clear about that, like what user persona you're targeting, what user persona you're not targeting, and and from there you have to be clear what will be your go-to-market, whether you're going to go direct, you're going to be indirect, what is going to be your overall distribution strategy for what you're going to build, whether it doesn't matter whether it's the hardware or software. How is you going to, what will be your go-to-market, and what impact is going to have on the customers, and overall what is your competitive overall the competitive landscape, how does it look like? And that's where you start to build into your product. And when you're working in a large corporation, another thing to keep in mind is how it impacts the overall ecosystem. How does this product fit into the overall big broader product portfolio? If you have the adjacent products, how does this product fit into the overall grand picture of the portfolio, especially in the large corporations you have, and then the important thing is the roadmap. So sorry to long answer, but it's just overall there are quite a few attributes that you look at before before the successful launch of any product. Say so. So I think the conversation is going towards a certain direction, और उसमें कुछ मज़ीद मेरे पास कुछ सवाल हैं, एक overarching questions हैं, but I wanted to ask Ali something really quickly. Ali, so हम बात कर रहे हैं being a good listener, having your fingers on the pulse कि customer की need क्या है, और हम बात कर रहे हैं एक connection की customer के साथ, एक intimate connection की. और I wanted to plug in a question from the audience. उमर अशरफ ने यहाँ पर सवाल किया था कि there is so much talk about कि अपना passion follow किया जाए, and sometimes you have multiple passions, and you're certainly someone who has always followed what you were passionate about in your life. And I want you to kind of like answer this कि फिर passion कैसे decide किया जाए, मुझे क्या करना है, keeping in mind जो Shahid and Faisal and FSG has said, and also give us a couple of examples of कि keep trucking में how are you doing it in terms of कि customer को क्या चाहिए और हमें क्या बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और based on what शाहिद साहब and फैसल साहब said, like I think वो एक नेचुरल सेगवे भी है सिर्फ, और उसके और पहले वाली बातों के रिस्पॉन्स में, like I was thinking about everything from a slightly different angle, तो I want to talk about it too, जो इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी डिस्कशन हो सकती है. So basically हमने बात की है कि you have to be very empathetic, you have to be sensitive about customer problems, और आपको you have to live their life basically to really understand कि उनके problems क्या हैं. और I've made a lot of mistakes. जब मैं अपने startups कर रहा था तो I've been on the other side, so I know कि मैंने क्या क्या गलत काम किए थे, और फिर I've learned कि क्या चीज़ें शायद अब मैं सही कर रहा हूँ, या इस process में मैंने सही क्या चीज़ें एटलीस्ट सही हैं, चाहे मैं वो कर रहा हूँ या उधर पहुँचा हूँ या नहीं, but I think I'm going towards the right direction. और उसमें जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो ये है कि जब हम बात करते हैं, चाहे वो हम एक प्रीडिफाइंड पोजीशन से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कीप ट्रकिंग, द ब्रॉडर मैंडेट जो मेरे पास था प्रोडक्ट्स का, वो डिफाइंड था कि मैं लॉन्ग हॉल सेगमेंट है यूएस में ट्रकिंग का, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और उनके लिए हमारे पास पहले एक प्रोडक्ट का एंट्री पॉइंट है, एंड वी नीड टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट. तो वी ऑलरेडी हैड अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक who our target customers are. तो एक वो पोजीशन हो सकती है स्टार्ट करने की, और एक पोजीशन हो सकती है जिसमें आप टू आंसर योर क्वेश्चन, जिसमें आप एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पैशनेट हैं. लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों जो पोजीशन है ये बहुत सिमिलर हैं, इसलिए कि आपको दोनों चीज़ें एक बेस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर आपने बिल्ड करना होता है. और उसकी मैं 2 एग्जांपल्स दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कीप ट्रकिंग,
I was brought on board to build a dashcam product as a जिसमें we wanted to solve the safety problem of the fleet trucking fleets in US. That's all I knew on day one. I knew कि मैंने एक dashcam product बनाना है, but then उसके बाद really like digging deeper into understanding why does a dashcam matter matter for a fleet, or for that matter उसके अंदर उनके उनके उसके चैलेंजेस, उनकी ज़रूरत क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं उनका, और कितने बाकी सारे कौन से लोग इन्वॉल्व हैं इस इकोसिस्टम के अंदर, वो उस सारी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आई हैड टू बिल्ड। और उसका जो मेरे लिए एक तरीका था वो ये था कि पहला काम जो मैंने ये किया कि कीप ट्रैकिंग की अपनी सेल्स फोर्स जो है, I started spending a lot of time with them because they are at the forefront. So वो जो कस्टमर से बात कर रही तो उन्हें एक बहुत broad level के ऊपर एक पल्स मिल रही है मार्केट की। And then I would identify a couple of customers. I would go on site. I would spend 2 to 3 days at the customers वो yard वगैरह, and I would try to talk to a lot of their fleet managers. I would see their daily process to really understand कि वो क्या उनके processes हैं। और उस दौरान मुझे पता चला कि fleet managers का जो response होता है वो different होता है towards a safety product, towards a dashcam product compared to a driver's response. तो उसके बाद मैंने एक काम करना शुरू किया कि एक तो मैं जब जाता था इन ऑन साइट्स के ऊपर, आई मेड श्योर कि मैं जितना टाइम फ्लीट मैनेजर्स के साथ गुजार रहा हूँ उतना ही टाइम मैं ड्राइवर्स के साथ भी गुजार रहा हूँ, उनके साथ राइड अलॉन्ग्स पे जा रहा हूँ, जस्ट टू सी कि हम एक कैजुअल इन्वायरमेंट में मुझे उनके प्रॉब्लम्स की समझ आए। बट देन उसको एक स्टेप और आगे लेके जाने के लिए मैंने ये काम किया कि मैं ट्रक स्टॉप्स पे जाके मैंने बैठना शुरू कर दिया, और मैं उधर जाके बैठता था और लोग ट्रक्स आके रुक रहे होते थे, और लोग खाना खाने आएंगे ट्रक स्टॉप के अंदर, वो खाना खा रहे होंगे और मैं उसके बाद उनके पास जाके थोड़ी देर के लिए आधे घंटे की एक चैट कर लूँगा, और उससे जो मेरी लर्निंग डेवलप हुई थी, दैट बेसिकली हेल्प मी बिल्ड अ प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप। तो और वही सारी चीज़ें मैप कर सकता हूँ अपने पैशन वाले प्रॉब्लम के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पर्सनली लाइक आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर स्पेस फॉर एग्जाम्पल, अब वो मेरा पैशन है, मैं उस साइड पे कुछ करना चाहता हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं बस कोई एक चीज़ पकड़ूँ और मैं वो करना शुरू कर दूँ। द राइट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद इन माई पैशन एरिया इज कि मैं जो मेरी आइडियल जो मेरे कस्टमर्स हैं, जिन लोगों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ टाइम गुजारूँ, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो जो फूड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मैंडेट वाले लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि प्रोसेसेस क्या होने चाहिए, चाहे वो सप्लाई चेन वाले लोग हैं। the way to solve these problems is कि मैं उनके लोगों के साथ जाके टाइम गुजारूँ, उनकी प्रॉब्लम समझूँ और उसको सिंथेसाइज करूँ इनटू अ क्लियर प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और उनकी ज़िंदगी में पहले दिन से कोई वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। That's how I think about these problems. We would love to know more about कि अमेरिका के ट्रक होटल्स का कैसा एक्सपीरियंस है as compared to the मंची वाला होटल that we have पाकिस्तानी सी दाल नहीं मिलती। So following your heart and passion and given how startups are कि कितना मुश्किल है एक particularly पाकिस्तान में, हर जगह ही मुश्किल है, but पाकिस्तान में एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना and then building something और उसको बाहर लेके जाना, उसको सेल करना। So Faisal, would you like to add something जो अली ने बात की है, because हमने बात की एक सेट एनवायरनमेंट से कैसे इसको किया जाता है, बट इफ यू आर अर्लियर देन दैट, आप अभी उससे पिछली स्टेज पे हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फॉलो योर हार्ट, और प्रोडक्ट्स जो है वो किस पर्सपेक्टिव से आर यू एबल टू क्रिएट अ बेटर प्रोडक्ट इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, या अदरवाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? नहीं, आई थिंक जो अली भी बात कर रहे हैं और जो क्वेश्चन भी था कि पैशंस या पैशन, राइट, सो आपके पैशंस कई हो सकते हैं। मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरे बड़े पैशंस हैं। मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूँ। मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं खाना भी खाना चाहता हूँ। मैं कई दफ़ा खाना खाते हुए म्यूजिक भी सुनना चाहता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैं ट्रैवलिंग के वक्त भी जो है म्यूजिक भी सुनना चाहता हूँ, और मैं जगह जगह खाने सैंपल भी करना चाहता हूँ। तो ये सारे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 पैशंस है, 2 की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत है, लोगों को समझना, लोगों से मिलना, ये बहुत सी चीजें हैं जो आपके अंदर से आती हैं। आप अगर अपना पैशन मैच करें जो आप करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि कोई किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं या डिवाइस करना चाह रहे हैं और एक बिजनेस उसके ऊपर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका सिंगुलर पैशन है
सिंगुलर प्रॉब्लम उसको आप रिजॉल्व करें। मेरा असल पैशन जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो कंटेंट है। मैंने उस हिसाब से देखा, मैंने जितनी इन्वॉल्वमेंट्स की मैंने उस हिसाब से की। मैं अगर पीछे जाता हूँ, तकरीबन 30 साल पीछे चला जाता हूँ, तो मैंने एडवर्टाइजिंग से शुरू किया और मुझे शौक था कि मैं समझूं लोगों को, मैं ये समझूं कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, उनको कौन सी चीज़ पसंद आती है, मैं उनके साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूँ। उस कम्युनिकेशन को मैंने कॉपी राइटिंग में डेवलप किया, उस कम्युनिकेशन को मैंने विजुअलाइजेशन में डेवलप किया और उसी से एक बहुत बड़ा बिजनेस बना जो इंटरफ्लो कम्युनिकेशन था। ठीक है ना, हम 3 पार्टनर्स थे और हमारा डिज़ायर था, हम तीनों जो है क्रिएटिव प्रोसेस से आ रहे थे और हमने उसको कंबाइन किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट कि जी मार्केट किस तरह, कस्टमर्स कैसे बिहेव करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया। यही जो पैशन था इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया इनटू टैंजिबल बेनिफिट्स दैट वी कुड ऑफर। अब वो बेनिफिट्स किसको ऑफर कर रहे थे? एंड कस्टमर को कर रहे थे, बट थ्रू अ वाया मीडिया, राइट? किसी ब्रांड के साथ मुंसलिक करके कर रहे थे उसको। और ये सारा प्रोसेस जो था, उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा स्टेज जो था वो टेलीविजन की तरफ था, राइट? सो ब्रांड मार्केटिंग करते करते, ब्रांड्स को प्रमोट करते करते, उनकी कम्युनिकेशन डेवलप करते हुए, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो शाहिद साहब कहते हैं लिव द कस्टमर, राइट, लिव देयर लाइव्स। तो सोचना शुरू किया कि अच्छा ये क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम कैसे गुजारते हैं, उनको कंटेंट की कितनी ज़रूरत होती है, टाइम किलर चाहिए उनको, एजुकेशन चाहिए उनको, कौन सी चीज़ चाहिए। वहाँ से एक जो है वो बिजनेस डेवलप होना शुरू हुआ एनटीएम के नाम से, राइट? एंड आई केप्ट मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो आई थिंक आई कैन रिलेट रिसेंटली इज पटारी। मुझे फिर म्यूजिक का, मैंने आपसे कहा कि मुझे शौक भी था, एनटीएम के दिनों में एक्सपीरियंस भी किया कि लोग म्यूजिक सुनते हैं और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एलिमेंट है टेलीविजन व्यूइंग में भी, फिल्म में भी, कोई भी कंटेंट जो विजुअल कंटेंट है, विजुअल आर्ट्स है, उसमें म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हुई, नॉट जस्ट ऑफ द कंज्यूमर बट ऑल्सो ऑफ द आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट को क्या चीज कंपेल करती है, मैं नया म्यूजिक क्यों प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे कौन सी ऐसी, मेरा कौन सा ऐसा पैशन है जिसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो वो समझना शुरू किया कि गिटार जो है वो कौन बजाता है, और देखा और जाके देखा कि कहाँ कहाँ जो है, जैसे कराची में, क्योंकि उस वक्त मैं कराची में था, कि गिटारिस्ट कहाँ से आ रहे थे, तो लार्जली वो आ रहे थे मार्जिनलाइज एरिया से जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, जहाँ एंगर थी। तो समझना शुरू किया कि म्यूजिक की जो है उनकी कंपल्शन क्या है, उनकी एक्सप्रेशन क्या है, राइट? तो वहाँ से वो डेवलप होना शुरू हुआ। और जब मेरे पास कुछ लोग आए, यंग गाइस, एंड दे हैड जस्ट फिनिश्ड स्टडीइंग एट जीकी, और उन्होंने आगे कहा जी हम जो है ना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं टेलीविजन के लिए, ड्रामा के लिए। मैं उस वक्त जो है जियो नेटवर्क में आई वाज हेड ऑफ स्ट्रेटजी फॉर देम, मैं वहाँ काम कर रहा था, मैं डिजिटल साइट की डेवलपमेंट कर रहा था। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए ड्रामा जो है ना, वो इस वक्त जो है ब्रॉडकास्टर जो है, जो प्रोड्यूसर है और जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ड्रामा, उसको ये समझ नहीं है कि जी डिजिटल जाना है, ओटीटी जाना है, उसके लिए टेलीविजन स्क्रीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन म्यूजिक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली जो है वो जंप करेगी टुवर्ड्स ओटीटी, क्योंकि आईफोन लॉन्च हो चुका था। सबसे पहली चीज़ जो उस पर आनी शुरू हुई, उससे पहले भी आ चुकी थी, वो था आपका आईपॉड। ठीक है ना, स्टीव जॉब्स जो है वो फिक्र कर चुका था कि म्यूजिक इज़ अ वेरी की एलिमेंट इन एवरीबडीज लाइफ्स, राइट? उस हिसाब से वो है। तो वहाँ से फिर हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो पटारी की तरफ गई कि हम पहले जो है एक म्यूजिक का जो है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाए, और जो आर्टिस्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि ना सिर्फ उसका म्यूजिक पब्लिश हो सके, बट उसके म्यूजिक की पब्लिशिंग से मोनेटाइजेशन हो सके, ताकि वो और म्यूजिक प्रोड्यूस कर सके। सो दैट वाज द सर्कल ऑफ वर्च्यू इन अ वे। सो वी स्टार्टेड आउट विद दैट, उस सोच के साथ लेके चले। जो 3 फाउंडर्स थे जो उसमें शामिल थे मेरे साथ, उनका भी पैशन जो है, उनमें से एटलीस्ट 2 का पैशन जो है वो म्यूजिक का था, एक का टेक्नोलॉजी का था। तो वो टेक्नोलॉजी फोकस था, वो चाहता था कि जी मैं कुछ कोई ऐसी चीज़ डेवलप करूँ, ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजी फोकस्ड हो। तो उसकी अपनी एक सोच थी, उसका अपना एक पैशन था। और हम 3 का पैशन जो था वो म्यूजिक की तरफ था, कंटेंट की तरफ था, क्रिएटिविटी की तरफ था।
so जो मुझे बात समझ आ रही है कि if you follow your passion you'll be curious enough कि आपको नजर आएगा कि क्या problems exist करती हैं and you'll end up solving those. But coming back to you शाहिद, so हमने बात की do what you're passionate about, do what you love, do what you are good यासिर, at, solve a problem. मैंने नहीं कहा यासिर। इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, I can see, इसलिए I'm coming to you. So we talked about a deeper connection. So then और हम बात करते हैं, एक बात अक्सर की जाती है कि is a problem worth solving. और आपने particularly, so I would like your comment on generally from here onwards I would like कि मैं panel I'll go through the entire panel with a certain question because आगे questions की नौयत ऐसी है. But एक तो I would want your comment on your thoughts on what everybody has said, and also कि we talked about the deeper connection, we're talking about customer से जाके बात की जाए. But फिर how do you find out कि this is a problem worth solving? अगर आप टैम सैमसोंग पे आपने एक कमेंट दिया था, किस पॉइंट पे जाकर आप ये देखेंगे ये प्रॉब्लम तो मुझे अब करनी चाहिए क्योंकि ये जिन 10 लोगों से मैंने बात की है उनसे ज्यादा की प्रॉब्लम है। ठीक, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आप अपने पैशन को फॉलो करें, उस वक्त फॉलो करें जब आपके अब्बू करोड़पति हों। जब आप हैंड टू माउथ सिचुएशन है, you don't have time to follow your passion. It is all a hypothesis that again and again proves to be wrong. I think I would replace passion को मैं replace करूँगा constant learning से, क्योंकि अगर आप में curiosity है, you are going to hunt for problems. अगर curiosity नहीं है, जिंदगी चल रही है, who cares? So that's one point. दूसरी, I think जितने भी, मेरी थोड़ी सी बायस है NIC की बैचेस में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं कि आपका जो टेन्योर है किसी भी NIC में, आपकी सिंगल जॉब है जो है आपने अपनी अडॉप्शन को ग्रो करना है। अगर आप आए हैं, आपके पास 2 कस्टमर हैं, जब आप 6 महीने और 5 महीने होंगे, आपका टारगेट होना चाहिए इनको मैं 2 से 3 हज़ार कैसे लेके जाऊं। ठीक है, ये गोल है। जब ये गोल होता है तो उसको आप बैकवर्ड, जब यूजर पे डीप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप उसको, उसमें एक थीम नजर आ रही है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और जब आप उनके साथ वो पूरा प्रोसेस जो मैं उनके साथ करता हूँ उसको फॉलो करें, तो वो आपको आइडियाज देगी कि इसका सोल्यूशन, आपके आइडियाज नहीं होंगे, वो उनके आइडियाज होंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, ये 20 साल से यूज हो रहा है। तो वो आपको बताएंगे ये हमारा प्रॉब्लम है और हमारे ख्याल में इस तरह सॉल्व होना चाहिए। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि अगर ये सॉल्व नहीं हो तो इससे आपको क्या नुकसान होगा, वो आपको बता देंगे, इतना, वो आपकी प्राइसिंग पॉइंट हो गया। तो जो टारगेट पर्सोना यूजर है उनके पास सब जवाब है, आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन करने। आपने ये नहीं करना चाहिए आपको ये मेरी प्रोडक्ट कैसी लगी है, उसका बाइनरी आंसर है, बड़ी खूबसूरत है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, you're exactly right. मैं कल ही एक्चुअली एक स्टार्टअप के साथ मेरा सेशन था, वहाँ पे एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम था कि nobody was buying their product and the thing was कि it was 100 times more expensive than वो कस्टमर को जो चाहिए उतनी जितनी रेंज में चाहिए, बिकॉज कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट है बट कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता। सो you made a comment, this basically pushes me to ask कि फिर वो स्टीव जॉब्स जो कहता है कि connecting the dots, फिर वो कहाँ फिट इन होगा? अगर आप अगर 10 लोगों से बात कर रहे हैं, आपको एक कॉमन थ्रेड नजर आ गई है, तो उसकी आइडिएशन के जब आप कस्टमर से करवाएंगे, तो अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस वक्त आपके दिमाग में आइडियाज, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में डिफरेंट आइडियाज आएंगे। सो कनेक्टिंग द डॉट इज लुकिंग एट ऑल द आइडियाज एंड फाइंडिंग द गोल्डन थ्रेड्स। बट अगेन, जो मैंने कहा था, आई थिंक किसी ने एक सवाल किया था कि मैंने ये नहीं कहा कि फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट, इट्स एक्चुअली द रिवर्स, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम। और जो हमारे लिए इतना मुश्किल है, और मुश्किल इस वजह से है कि हमारी ईगो बहुत बड़ी है, इट्स अ ईगो प्रॉब्लम। सो आइडिएशन की बात की, सो फैसल मेरा आपसे सवाल इस पे ये होगा कि आप हम बात करें और कस्टमर्स के साथ आइडिएशन की बात की, तो खास तौर पर स्टार्टअप्स जो हैं
उनके जहन में हमेशा ये सवाल होता है यार मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं एंड शाहिद का एक पर्सपेक्टिव है विच इज वेरी राइट कि ईगो का इशू इसमें आ जाता है बट देन देयर प्रॉबली एक सेकंड के लिए हम एंटरटेन करते हैं जेन्युइन फियर कि यार मेरे पास तो आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, चाहे मैं उसको समझता हूँ नहीं समझता, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर कस्टमर मेरे से बात क्यों करेगा या पोटेंशियल कस्टमर मेरे से बात क्यों करेगा? वो कहेगा भाई तुम क्या यहाँ लेने आए हो, तुम्हारे पास तो सोल्यूशन नहीं मेरी प्रॉब्लम का। सो कैसे कस्टमर को अप्रोच किया जाए और क्या बात की जाए फिर अगर आप समझना चाहते हैं और कस्टमर के साथ आइडिएशन करना चाहते हैं? इसमें जो जो बेस्ट स्ट्रेटजीज इसमें जो काम करती हैं उसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप आइडिएशन फेज में आप जो है अगर आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू इफ यू आर वर्किंग फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेशन। तो आप अगर दोनों पे स्टार्टअप्स कमेंट्स तो दोनों पे ओके, सो कमेंट्स। स्टार्टअप्स के केस में लाइक आइडिएशन फेज में स्टार्टअप्स एक स्टार्टअप है जिनके साथ मैं ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ। सो दे आर वर्किंग ऑन एन AI solution for digital health. So it's like so overall when you're looking at the problem, like especially with the startups, उनका ये होता है कि ideation phase में how many times they have gone for, let's say, a hackathon. So hackathons are one of the ways where they can go and figure out like quick prototyping or and figuring out what is the problem. And उसके बाद ideation phase में the other thing is like this particular startup जिसके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से मैं I've been advising them. I was actually also an early investor in that startup. तो उनका जो solution है, their solution is focused on digital health, and they're trying to they're working on an AI platform. It consists of both not only there's a hardware component and there's also a software component, but obviously all the value is in the software. So the way they worked at it, like they went to the hospitals, they went into the nursing homes, they went into the long-term care facilities. वहाँ से उन्होंने सारे जो ना अपने they put themselves in the shoes of a potential customer. उनके case में the customer is the healthcare staff, right? So उनका solution है like how we make the overall optimize the overall solution. So जब मैं उनके साथ काम करना शुरू किया और being with them from the very early on, they're through my alumni network, University of Waterloo up in Canada. तो उनके साथ जो है the ideation phase में the main thing थी like वो again classical product management. I've been doing it for a while. Like we went through all the steps, like figuring out the market, and after that quick prototyping, and then figuring out like going and trying to find some early investors. So usme I was also one of them, but obviously the idea was strong enough that there were many investors who jumped in. So I think now there's after 3 years, fast forward, they are almost ready to raise Series A, and they have successfully finished 2 clinical trials, and they are almost going into production. So that was their ideation phase. So in the ideation phase, so when you're looking at large corporations, so the ideation phase may, so I worked for a very large corporation in the past, which was Hitachi, so one of the biggest conglomerate in the world. But Hitachi, when we look at the Hitachi, they consist of almost like 900 different companies. And the company that I was working in within the Hitachi, it was an incubation company. So where they were ideation phase, we're looking into like AI use cases, like artificial intelligence. How do we apply artificial intelligence into the main vertical we're going after was telecom service providers. So उसमें जो है ideation phase में when you are working for, you have the backing of a large organization like Hitachi, then obviously you have existing customers. So you have ability, you have the you have the customers who you can go and get some early feedback. So उसमें so एक important point that I just want to say one thing is like
the product is easier to prototype, but it's very difficult to build a product which is scalable. So you can, a lot of time that I have seen the startups or that they start building up a solution that is good for 1, 2, or 3 customers. But that's where like every customer they go and they start building a new a variation of their product. So that's not a scalable model. So that's where you'll stop after 7, 8, or 9 customers, because everything you're doing a lot of customization. So that's another thing that you got to keep in mind. Like everything that you're building right from the ideation phase, it should be a scalable. It should translate into a scalable business model later on. ठीक, so हमने कस्टमर्स की बात की, कस्टमर से बात करने की बात की, कस्टमर के साथ आइडिएशंस की बात की. आप सब लोग बातों की बातें कर रहे हैं, बट होता ही है कि मुझे तो हर तीसरे दिन को व्हाट्सएप पे आता है, सर हमारा सर्वे फिल कर दें. सो अली, आई वांट टू स्टार्ट विद यू एंड आई वांट टू गो थ्रू द एंटायर पैनल कि फिर ये बात तो कोई नहीं कर रहा, मुझे तो, और आई थिंक सबके साथ ऐसे ही होता है, कहते ये सर्वे फिल करते हैं, आंसर दीस 30 क्वेश्चन that will tell us about कि आपकी क्या नीड है और क्या चीज़. So फिर क्या करना चाहिए? क्वेश्चन फिल करना चाहिए, बात करनी चाहिए, what's wrong there, what's not happening, what should happen, and then I would go through the panel to sort of like ask the same question. So मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई हैव डन बोथ. मैंने सर्वेज किए हैं, और द वे आई लुक एट इट इज, सर्वेज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटेटिव डेटा देते हैं. आपको पता चलता है कि क्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स, अगर आपने एक चीज़, किसी चीज़ को जनरलाइज करना है तो वो कितनी अच्छी जनरलाइज हो रही है. लेकिन मेरे ख्याल में सर्वेज अलोन डोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम. मेरे ख्याल में सर्वेज हमेशा जो है ना हैंड जाते हैं किसी एक डिटेल्ड रिसर्च प्रोसेस के, और उस रिसर्च प्रोसेस में you go spend time with the customers, you figure out their problems, you build a hypothesis, you find patterns, and then based on those patterns you design a survey to see कि जो मैंने 5-7 लोगों से जो बात करके जो कुछ मुझे समझ आया है वो जनरलाइज होता है मेरी कस्टमर बेस के ऊपर या मेरी टारगेट कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर या नहीं. एंड आई हैव डन दिस एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स. जो बेसिक हाइपोथेसिस, फॉर एक क्लियर एग्जांपल मैं इस चीज़ की दे सकता हूँ कि जब हम अगेन कीप ट्रैकिंग में जब हम डैश कैम प्रोडक्ट बना रहे थे और उसकी सारी चीज़ें इंटरनली, लाइक फ्लीट्स कैसे सोचते हैं, ड्राइवर्स कैसे सोचते हैं, जब ये सारा कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, तो एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि ड्राइवर रिएक्शन क्या होगा डैश कैम्स के ऊपर, क्योंकि वो ड्राइवर्स थिंक ऑफ द कैबिन के ट्रक को कि ये उनकी अपनी पर्सनल लाइक एग्जैक्टली तो वो नहीं चाहते कि कोई रिमोटली उनको देख सके या जैसी वो ड्राइविंग कर रहे हैं वो देख सकें. तो प्राइवेसी के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे. तो कुछ लोगों से जब बात की हमने, तो हमें ये पता चला कि जिन फ्लीट्स ने पहले कोई और एग्जिस्टिंग सिस्टम ट्राई किया हुआ था, वो उनके एक्सपीरियंस से पता चला कि इनिशियली ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं और उनकी रेजिस्टेंस होती है इस किस्म के सिस्टम्स के ऊपर. बट उसको अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकली मैनेज करें, अच्छे तरीके से मैनेज करें, ऐसे कि 1-2 लोगों को ऑन बोर्ड लेके आए, उनका कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, वो कुछ ना कुछ ऐसे रिस्की इवेंट ड्राइव रोड के ऊपर देखेंगे जिससे ड्राइवर को हेल्प होगी, तो वो जब बाकी अपने फ्लीट के अंदर स्टोरी सुनाएंगे तो बाकी ड्राइवर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे साइड से. तो व्हाट वी लर्नड वाज कि अगर आप एज अ फ्लीट, इफ यू हैड सम एक्सपीरियंस with dash cams in the past, so your drivers are going to be way more open to systems like this. अब ये एक फ्लीट से लर्निंग थी, बट देन वी वांटेड टू टेस्ट इट कि ये बाकी सारों का इसके बारे में क्या ख्याल है. तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड इन माय सर्वे के अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स, एक 0 to 5 फ्लीट वाला ट्रक्स वाला फ्लीट कैसे सोचता है, 5 से 25 वाला, 25 से 100 और 100 से प्लस, लाइक अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स लोग इस बारे में कैसे सोचते हैं इस सारे प्रॉब्लम के बारे में. एंड आई गॉट अ रियली गुड पल्स ऑफ द मार्केट और द फ्लीट्स इस सारी चीज़ के ऊपर. तो अगेन टू समराइज, आई थिंक surveys are a good tool, but they're not the only tool. You have to be smart about creating a survey and basically like augment that with or supplement that with more research. जी, FSJ, आपकी इस पे I would love to take your thoughts on this as well, sir. जी, देखिए, surveys, any kind of information, any kind of data, right? The key thing is what is the insight you get out of it. Data by itself, जितना मर्जी आप information collect कर लें, can become fog.
आपको कुछ समझ नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी उसमें से। तो एक तो मैनेजेबल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ नंबर्स इकट्ठे कर देने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। और सर्वे जो है, असल उसमें जो एसेंस है वो सवाल आप क्या पूछ रहे हैं। जैसे अली ने अभी कहा कि वो ड्राइवर को जो डैश कैम का उसका जो पर्सपेक्टिव है, अगर मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा तो मुझे नहीं पता चलेगा। मैं समझूंगा शायद चाहिए, शायद ना चाहिए। 100 लोगों से मैंने पूछा, या मैंने क्वेश्चनर भेजा, या मैंने सर्वे किया, उनसे बात की, उन्होंने एक जवाब दिया। तो ये बड़ा क्रिटिकल है कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल का मकसद क्या है, ठीक है ना। और सिर्फ मकसद मेरा नहीं, मकसद जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो फिर हम वापस जाते हैं कि उसकी असल पेन पॉइंट क्या है, उस सवाल में क्या उसकी पेन पॉइंट का कोई जुज शामिल है या नहीं शामिल है। तो बहुत इंटेलिजेंटली और बड़ा केयरफुली आपको अपना सर्वे क्वेश्चनर जो है वो मॉडल करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कोको कोला का। कोको कोला ने कुछ तकरीबन 25-30 साल पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 30 साल हो गए अब तो, उन्होंने एक स्टडी की। वो स्टडी इसलिए थी कि उनको ये इन्फ्लुएंस आई कि जी आपका जो टेस्ट है कोको कोला का, पेप्सी ने टेस्ट चैलेंज रेज किया था, तो उन्होंने कहा कि जी ये टेस्ट जो है, पीपल आर प्रेफरिंग द टेस्ट ऑफ पेप्सी। कोको कोला ने ब्लाइंड टेस्टिंग करवाई, ब्लाइंड टेस्टिंग करवाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ब्लाइंड टेस्टिंग की। जब उन्होंने ब्लाइंड टेस्टिंग की तो उसका जो रिजल्ट आए, उस सर्वे के रिजल्ट ये आए कि पीपल वर एक्चुअली प्रेफरिंग द टेस्ट ऑफ पेप्सी। इट वाज स्वीटर, स्लाइटली स्वीटर। उसकी बेसिस पे कोको कोला डिसाइडेड टू चेंज देयर फॉर्मूला। जब उन्होंने फॉर्मूला चेंज करके मार्केट में डाला, आफ्टर massive intensive service and taste tests, it bombed, because now people were drinking it out of a Coca-Cola bottle or a Coca-Cola can. They forgot that people had a perception in the mind about the taste of Coca-Cola, and that had changed. So there was a huge backlash, and then came a lot of confusion. New Coke, old Coke, classic Coke, वो सारी चीजें they tried to spin it around बाद में कि जी हमने अपनी जो है ना मार्केट और एक्सटेंड कर दी, हमने एक प्लेटर डेवलप कर दिया। तो बहुत जरूरी है, देखिए एम्पिरिकल डेटा जो है वो आपको एक जनरलाइज पिक्चर देता है, लेकिन जब तक आप क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करते, जब तक आप कॉन्वर्सेशंस नहीं करते, जब तक आप कस्टमर के साथ बैठ के उसकी असल पेन पॉइंट को नहीं समझते और उसकी परसेप्शन को नहीं समझते कि वो कैसे देखता है। जैसे अभी अली ने कहा सेगमेंटेशन, ठीक है ना। जो 5 ट्रक्स वाला फ्लीट मैनेजर है, जो 50 वाला है, जो 500 वाला है, जो 5000 वाला है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी, उनको उनको जो चीज़ चाहिए वो डिफरेंट होगी, राइट। सो सिर्फ जाके क्वेश्चनर डाल के कि जी वो आप कितने सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो ये ज़रूरी है कि आप सर्वे करें, आप डेटा कलेक्ट करें जितना डेटा आपको मिलता है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि too much data will be fog. You will not be able to see through it. It is very important that you ask those right questions. And then don't be shy of experimenting. Experiment करें. Experiment fast, fail fast, move on. ठीक। सो शाहिद, कमिंग टू यू, आप कस्टमर से बात की जाए, उसको सर्वे का लिंक भेजा जाए क्वेश्चनर का, या उससे जाकर किसी सर्वे की बेस पे बात की जाए? अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो सिर्फ सर्वे ही करेगा तो 6 महीने का बाद आप उधर ही होंगे जहाँ पहले थे। अगर आपकी रिलायंस सर्वे पे है, एक कस्टमर मेरा था, तो उनका एक डिपार्टमेंट था जो लोगों को हाउसिंग सब्सिडी देता था, तो उनको 5 स्टार रेटिंग मिलती थी। जब हमने 12 फैमिलीज को इंटरव्यू किया 1-on-1, तो पता चला कि इतना इंटिमिडेटिंग सर्विस सेंटर है कि वो उनको लगता है उनकी इंसल्ट हो रही है। तो जब मैंने उसको डायरेक्टर को आया, मैंने कहा ये रियलिटी तो ये है। वो दूसरे दिन आई कहने की मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि ये तो हम तो समझ रहे थे 5 स्टार सर्विस। मैंने कहा तुम्हारा वो जो ऑपरेशनल मैट्रिक था वो कैसा है? कहने लगी हम सिर्फ टारगेट 3% मीट किया। मैंने कहा शुड दैट बी अ फ्लैग? एक तरफ 5% है एंड यू मिस योर टारगेट बाय 97%। तो अगर आपने सर्वे किया है, वो आपको एक डायरेक्शनल एंटेना दे देगा।
आपको जरूर जाके फेस टू फेस जो आपके टारगेट लोग हैं उनसे आपने एम्पैथिकली बैठ के पूछना है. अगर आपने ये कॉम्बिनेशन किया, यू विल फाइंड द राइट डायरेक्शन. इट इज ऑलमोस्ट अश्योर्ड. लेकिन अगर आप सिर्फ सर्वे पे रिलाई करेंगे, यू विल फेल. इट इज नॉट अ गुड टूल, स्पेशली एज एन एंटरप्रेन्योर. जो आप शुरू हो रहे हैं, आप सर्वे से शुरू नहीं करें, आप जाके लोगों से बात करें. ये जो करंट बैच है NIC में, ये मुझे कभी माफ नहीं करेंगे. इनको पहली जो एक्सरसाइज जो मैंने दी थी कि इनको जाके जो डेली वेज अर्नर बाहर सड़क पे बैठा है उससे इंटरव्यू करें, उसकी लाइफ का पूछ के आए. और सबका कंसिस्टेंटली कंक्लूजन ये था उनके बारे में कि डेली वेज अर्नर्स का जो ईमान था और अकीदा था कि ये क्राइसिस विल बी ओवर. दे वर वेरी सर्टन. सेकेंड, उनका जो कंसर्न था वो अपने बारे में नहीं था, वो अपने रिश्तेदार, बहन भाइयों, माँ बाप के लिए था. तो एक्चुअली उनका कंक्लूजन ये था कि ये लोग हमसे ज्यादा कंटेंट हैं, हम जो मिडिल क्लास में हैं या दूसरी क्लास में हैं. व्हाट एन अमेजिंग इनसाइट. Absolutely. So yeah, coming to Faisal on the same question. And I would add another question to the mix, and that is, what does a good questionnaire or an interview or a survey entails? What are the techniques that you particularly keep in mind when it comes to talking to the customer? कि मुझे सवाल क्या करने हैं, चाहे वो जो भी form हो. So I would add that into a mix as well. So I would love to hear your comments on that. जी फैसल. Yeah, मेरे ख्याल में जो सर्वेज हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट, इफ़ यू हैव अ बैकलॉग ऑफ लेट्स से 200 फीचर्स, उनको आपने प्रायोरिटाइज करना हो, तो उसमें सर्वेज जो हैं दे आर वेरी, दे कैन बी अ यूजफुल टूल. लेकिन जो अगर आप नया प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्विस के साथ जो है, जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है कि आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है यूजर पर्सोनास और एम्पैथी टुवर्ड्स द यूजर, तो आप लाइव कस्टमर्स के साथ जाके मिलें और ट्राई टू फिगर आउट लाइक व्हाट विल बी द minimum viable product. Because especially if you're looking at the startups, आपके पास जो है ना, you have a limited number of resources. तो उन resources को आपने most optimized way में use करते हुए आपने product build करना है and launch करना है, minimum viable product. तो उसमें जो है surveys are one tool, and the other tool that you have is वो user groups or user studies. So वो भी जो है स्पेशली अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर इफ यू हैव अ यूजर इंटरफेस और एनी प्रोडक्ट, लाइक इफ आपके पास अगर इफ यू आर एबल टू फाइंड अ यूजर ग्रुप, समटाइम आपके जो है इन द लार्ज कॉर्पोरेशंस आपके पास जो है यू आर एबल टू फंड दीज थ्रू थर्ड पार्टी न्यूट्रल evaluators, जहाँ से आपको जो है उस तरह की feedback आपको मिल जाती है. So on top of service, you also have the ability to get the live user study report. तो वो जो है combination of both जो है it will help you to prioritize your backlog. तो again मेरे ख्याल में जो है it's more useful service, and especially if you have an existing product और उसमें जो है you have a feature backlog which you are trying to prioritize. So coming to you, Shahid, I know you might have a few comments on this, plus I would want to add a few more things into the mix because कुछ questions मेरे converge होते जा रहे हैं. So अब हम बात करते हैं customer से बात करने की, and we talked about different forms of doing that. So और फैसल ने बात की existing products में, for example, adding more features in that. So एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो एक तो ऑब्वियसली ये है कि एक अच्छा सर्वे या क्वेश्चन या इंटरव्यू, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए. हमने पर्सनालिटी ट्रेट्स की ऑलरेडी बात कर ली, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट इटसेल्फ नाउ. एंड आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज वैल्यू प्रोपोजिशन प्रॉब्ली एक चीज़ ऐसी है जो कस्टमर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है.
और लेटर ऑन आपकी प्रोडक्ट के अडॉप्शन के लिए शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नॉलेज से वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कस्टमर को ये चाहिए, एंड हाउ डू यू प्रायोरिटाइज दैट? अगर आप जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है मेरा उसको फॉलो करें, उसमें आपको सब जवाब मिल जाते हैं। क्योंकि जब कस्टमर्स आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं एक स्पेसिफिक टास्क में, जो आपके ख्याल में आपकी हाइपोथेसिस है कि ये उनकी प्रॉब्लम है, जब आप उनसे एम्पैथी बेस्ड इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको बता देंगे यहाँ ये चीज़ें जो हैं ये इससे हमें तकलीफ होती है। और बाय द वे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप हंट कर रहे हैं वो लॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हंट नहीं कर रहे हैं, आप इमोशनल प्रॉब्लम हंट कर रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, लॉजिक डजंट वर्क, वी आर इमोशनल ह्यूमन बींग्स। मिसाल ये है यासिर, मैं आपको ऑन द स्पॉट डाल रहा हूँ, आप इमेजिन करें कि इस पैनल के बाद आपके दिमाग में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है। आपने कहा मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके मैं ऐप बनाता हूँ उस पर एंड्रॉयड पे। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे आप? पहले तो मैं ये सोचूंगा कि ये किसी को चाहिए भी नहीं चाहिए, मतलब व्हाई इज इट कमिंग फ्रॉम मी, सिर्फ मुझे तो इस्तेमाल नहीं करनी ना। तो ठीक है, हम चारों पैनलिस्ट आपके टारगेट वो हैं, तो हमारे साथ क्या करेंगे आप इस आइडिया के? I think one thing I would not do is, what I'll do is something that's probably a lengthier discussion. But one thing I would not do is to come in and pitch you कि मुझे मैं ये बना रहा हूँ कितना जबरदस्त है. That is something I would never do. So right. So the thing to do, आप एक रफ मॉकअप सा बनाएंगे मेरे एक्सपीरियंस का टारगेट, और मुझे पकड़ा देंगे कि जरा आप इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं देखें। अगर वो टारगेट में उसमें पहले स्क्रीन पे ही फंस गई, ये है क्या, ये लॉगिन कहाँ है इसका, राइट? उससे जो आपको फीड फॉरवर्ड मिलेगी, you rather find that out before writing a single line of code. What is that user experience? So that's what you're looking for. और जब तक आप उसको नेल डाउन नहीं करेंगे और उससे पहले उसको आपने वैलिडेट करना है, बंदा कहेगा यार ये क्या दे दिया है मुझे तो जरूरत ही, मैं तो स्टॉक खेलता ही नहीं हूँ, मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है। So then you go and do something else. So one thing you teach about in your workshops is कि ask a customer about their daily routine. So what's जो the task है, yeah, task है। So what's the rationale behind that? अब देखें, एक क्वेश्चन ये था कि मैंने एक टॉवल ड्रायर बनाया है और मार्केट में दूसरे लोग जो हैं वो 300 रुपए का बेच रहे हैं, मैं उससे कम पे बजा सकता हूँ। अब आप अपने पहले रिश्तेदारों के घर जाएं और देखें कि वो जब नहाने से पहले वो क्या अंदर लेके जाते हैं बाथरूम में। हो सकता है वो टॉवल ही ना लेके जाते हैं, वो धोती से साफ कर ले। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि धोती को कैसे ड्राई करना है, विच इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अगर वो टॉवल लेके जाते हैं तो जब बाहर निकलते हैं वो टॉवल कहाँ होता है? वो टॉवल लेके वो बाहर आके उन्होंने चारपाई पे फेंक दिया, उनको कहते हैं ये हवा में सूख जाएगा। तो आपने ये बिहेवियर वॉच करना है कि आज क्या हो रहा है उस टॉवल के साथ बिफोर यू एक्चुअली डू एनीथिंग। और अगर आप उसमें लगे कि वो दोपहर के आखिर में जो घर की खातून है बड़ी तंग आ गई, उनके घर में 15 लोग हैं और 15 रोज टॉवल रोज उनको धोने पड़ रहे हैं ना, इज देयर अ प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग? आप उनसे पूछे कि 15 को धोने में आपको कितनी तकलीफ होती है, वो कहेंगे कि पुत्र है तो बस करना ही पैंदा हैगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं इन सबको छोड़ के मैं जा रही हूँ अपने मैके, देन यू नो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। सो अगेन सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और आपका जो टारगेट पर्सोना है वो आपको बता देगा उसकी सेवेरिटी क्या है। दे नो द सेवेरिटी, वी डोंट। Absolutely. So coming to you, Ali, again on the same topic, हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, हम POC की बात करते हैं, प्रोटोटाइप्स की बात करते हैं, हमने बीच में जिक्र हुआ MVPs का भी। सो अब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा काम कस्टमर के साथ करना चाहिए? और अभी शायद ने बात की, ही हैड अ वेरी पिंचिंग क्वेश्चन कि आपके जहन में कोई आइडिया आता है तो आप पहला काम ही करते हैं, बना कर ले जाते हैं। कस्टमर के बाद कहते हैं कि यार ये देखो, इस्तेमाल करो, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। And I think one of the key point that you missed there is कि कस्टमर अपनी बात नहीं कर पाता, और वो आपकी प्रोडक्ट पे फीडबैक देने लग जाएगा, एंड देयर माइट नॉट बी एनी ओनरशिप एट कस्टमर्स एंड के यार अच्छा ठीक है, दे माइट नो यू एंड दे से अच्छा मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ या समथिंग लाइक दैट, बट वो कभी नहीं होगा। सो फिर व्हेन डू यू इन्वॉल्व
things like prototypes and POCs, किस stage पे you do them, or how do you see them happening? या ये जरूरी भी है कि नहीं? तो बेसिकली मैं जब इस किस्म की चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो गोइंग बैक टू व्हाट शायद सब सेट के, अगर मसला ये है कि मैंने वो 15 धोतियाँ या 15 टॉवल्स का मसला है और मैंने जो वो खातून है उनका मसला सॉल्व करना है जिनको धोने पड़ते हैं, तो पहली चीज़ जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ वही है कि अगर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो अगर मैं उनसे वो ले लूँ उनके सारे 15 चीज़ें या 15 टॉवल्स और उनको कुछ देर के अंदर वो किसी मैजिकल तरीके से वो उनको वापस कर दूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई डिड विद दैट, जो भी किया मैंने, तो वो उससे कितना खुश होंगे या कितना गुस्सा होंगे वो। तो मेरे ख्याल में वो जो पहला जो MVP है, जो पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो उसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है कि यू डोंट हैव टू हैव अ प्रोडक्ट टू रियली सी कि आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको ये देखना है कि आप वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइक वो ये नहीं हो सकता कि मैं वैल्यू को ही किसी ऐसी चीज़ के ऊपर क्रिएट कर दूं जो पॉसिबल ही ना हो। वो फिर एक सैनिटी वाली चीज़ भी दरमियान में आ जाती है। बट यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस कि अगर मैं कोई एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर सकूं जिसमें मैं वैल्यू क्रिएट कर सकूं विदाउट बिल्डिंग समथिंग, तो मैं वो पहले शो कर दूं और उसके बाद फिर जब मुझे फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा तो मुझे लोगों की प्रॉब्लम की ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी और मैं उसके बाद सोचूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और उसकी एक बहुत नाइव एग्जांपल मैं जो शायद दे सकता हूँ वो ये है कि मैं अगर मैं मतलब ये बहुत नई बात है मेरे ख्याल में, बट एक्सट्रीम एग्जांपल है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर किसी ने बनानी है तो अगर मैंने देखना है कि लोग मेरे से सेल्फ ड्राइविंग कार्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो क्या मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने की ज़रूरत है या ये मैं मतलब ये कर सकता हूँ कि मैं शायद टेली ऑपरेट कर लूँ गाड़ी को और मैं सिर्फ लोगों को ये परसेप्शन दे दूँ कि अच्छा आपको जैसे गाड़ी चाहिए उसे गाड़ी मिलेगी या बटन दबाएंगे तो गाड़ी आपके सामने खड़ी होगी और वो आपको ले जाएगी। मैं उस लेवल के ऊपर आके, बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है बट मैं उस लेवल के ऊपर आके सोच रहा हूँ हर लेवल के ऊपर। और मेरे ख्याल में जब आप पहली लेवल के ऊपर आपने वैल्यू क्रिएट कर लिया तो फिर आप उसको थोड़ा बहुत उसके बाद अपना सोल्यूशन का मिक्स साथ डालना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि वो किस लेवल के ऊपर लेके जाके आप चीज़ें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मैं इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम सही। So Faisal, I wanted to come to you on this as well, but before I do, शायद आपसे मेरा एक सवाल था because this is something you love talking about. अली ने बात की सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, तो क्या करना चाहिए? चुप करके बना देना चाहिए, हार्डवेयर अंदर डाल देना चाहिए गाड़ी बेचते हुए और बाद में स्विच ऑन कर देना चाहिए? क्या एलॉन मस्क ने ऐसे किया था? यू टॉक अबाउट एप्पल एंड द जनरल परसेप्शन के स्टीव जॉब्स न्यू इट ऑल एंड ही न्यू कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनानी है। Can you give us some comment on both self-driving cars and as well as the Apple's methodology? लोगों को नहीं पता है एप्पल की एक इंटरनल यूनिवर्सिटी है. दिस इज बिल्ट अराउंड यूजिंग डिजाइन थिंकिंग. दे बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन 18 years. दे डोंट टेल द वर्ल्ड. उसकी जो फिलॉसफी थी इट वाज हेवीली सेंटर्ड ऑन दिस ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच. और लोगों को ये नहीं पता है कि एप्पल अपनी फ़ोन के साथ या आईपैड के साथ कभी भी यूज़र मैनुअल शिप नहीं करता है. इट इज़ सो इंट्यूटिव क्योंकि दे हैव डन एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड in the human-centered process. Elon Musk right now is a very pissed off gentleman because his factories are closed. वो कह रहा है कि US government is a fascist government. ये lockdown वगैरह सब stupid है because he's hurting. He's hurting. Self-driving, you know, ये COVID inshallah होने के बाद the world is going to be a very different place. Very different. I have no idea what's going to happen. जब मैं पिछले 8 हफ्ते से देख रहा हूँ घर में बैठ के कि मैं बाहर जब निकलता हूँ तो इतना सेफली मैं सड़क के दरमियान में घूम रहा हूँ. मुझे पता है गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं. इट्स अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ. वो किसी के घर पे फ्रूट लगा हुआ है उसको मैंने चोरी करके तोड़ के खा लिया. यू नो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ. तो टू मेक एनी प्रेडिक्शन कि पोस्ट कोविड क्या होगा, इट्स I can't even make that. Every industry जो मैं अपने customers में देख रहा हूँ, every industry is in severe soul searching. कि what business are we in? Really? ठीक. So FSJ, I wanted to continue जो हम बात कर रहे थे और उसमें I would like to add the question from the audience. So Talha and Fawad,
and some other people have asked this question कि sometimes customer को नहीं पता होता कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, वो अवेयर नहीं होता, तो उस सूरत में क्या किया जाए? कस्टमर को प्रोडक्ट ड्राइव करने दी जाए या कुछ, हाउ डू यू फाइंड आउट, या ये किया जाए कि कस्टमर से निकलवाई जाए थ्रू 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 प्रॉपर टेक्निक्स? Torture. So Faisal, what do you say? Shahid believes ke interrogation and torture is the way to go about it. I like the word torture. I also like what Shahid says about feed forward, and I learned from him yesterday, right? Pay forward. So there is no feedback, there is no payback. You got to keep looking forward. इसमें I don't think that the customer doesn't know what their problem is. Customer को कैसे हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम ना पता हो? हाँ, ये हो सकता है कि आपको ना पता हो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो आपको जानना है, ठीक है ना? प्रॉब्लम तो जिसकी है, जिसको तकलीफ है, जिसके बाल में आग लगी भी है, जिसके बालों में आग लगी भी है, उसको तो प्रॉब्लम का पता है कि मेरे बालों में आग लगी हुई है, या उसको पता है मैंने यहाँ से यहाँ जाना है और मेरे लिए जाने के लिए जो है या तो मेरा खर्चा बहुत ज्यादा होता है या मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसको प्रॉब्लम का पता है। ये नहीं हो सकता कि कस्टमर को प्रॉब्लम का ना पता हो। हाँ, ये हो सकता है उसको सोल्यूशन का ना पता हो कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है ये कौन सॉल्व कर सकता है और कैसे सॉल्व कर सकता है, ये हो सकता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि जी कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम का ना पता हो, ठीक है ना? कई सवाल इसमें हैं, पोस्ट कोविड के सवाल हैं, और शाहिद साहब ने जो बात की है वो सही बात की है कि प्रेडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन हमने सोचना जरूर है, और सोचना कैसे? अपने आप से शुरू हो, अपने आप से शुरू हो, ठीक है ना? 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले हमारा अपना लाइफस्टाइल, हमारा अपना तौर तरीका, हमारा हर चीज करने का अपना एक तरीका था, और पिछले 6-8 हफ्तों में हमें बहुत कुछ बदलना पड़ा है। जब हमें बदलना पड़ा है तो हमें यही सोचना चाहिए कि दूसरों को भी बदलना पड़ा होगा। कुछ सवाल अभी क्वेश्चन जो है वो ये है कि जी सर्वे जो है या इंटरव्यूज जो है या कॉन्वर्सेशन जो है कस्टमर के साथ, क्या वो स्काइप पे की जा सकती है, क्या वो रिमोटली की जा सकती है, ठीक है ना? तो हाँ, द इमर्जिंग वर्ल्ड विल बी अ लो टच वर्ल्ड, राइट? आपको हर चीज जो है सोचना पड़ेगा, तो बिहेवियरल चेंज जरूर आएगा। क्वारंटीन का लफ्ज जो है, राइट, आई हैड टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन दिस कि क्वारंटीन का लफ्ज आया कहाँ से है, एंड इट गोज बैक ऑलमोस्ट 8-9 centuries, राइट, टू द सेम इंसिडेंट्स कि जी प्लेग्स होती थी, वबा फैलती थी, तो इट वाज इब्न सिना, जिसको वेस्ट अविसिना कहता है, उसने ये डिवाइस की थी कि इफ यू आइसोलेट फॉर 40 days, द वर्ड क्वारंटीन कम्स फ्रॉम द अरबिक लैंग्वेज, इट्स द फिगर 40। जब आप 40 दिन के लिए आइसोलेशन करते हैं किसी चीज की भी, तो उसका जो है ना एक बिहेवियर स्टैब्लिश हो जाता है, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो आपने हटा दिया अपने आप को फ्रॉम दैट डेंजरस एनवायरनमेंट, दूसरा आपको बिहेवियरल पैटर्न जो है वो भी चेंज होता नजर आएगा। So it's 40 days is a very important thing, and we've gone through more than 40 days. So we have to look at it from that perspective. Yes, every business should be doing soul searching right now. जितने हमारे इस वक्त अटेंडीज हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जिन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है या वो सोच रहे हैं स्टार्टअप लॉन्च करने का, बहुत से सवाल यहाँ पर आएंगे। शाहिद साहब ने एक बात की थी कि जी अगर आपके वालिद करोड़पति हैं, तो मेरे तो वालिद करोड़पति नहीं थे, राइट? तो मुझे किसी ने करोड़ नहीं दिया कि जाओ बेटा जाके बिजनेस शुरू कर, ठीक है ना? वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो एक, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का आंसर बहुत कम होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी करोड़पति के वालिद ने, किसी करोड़पति वालिद ने कहा हो कि मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, जाओ मुझे देख के, मुझे करके दिखाओ कि तुम कर क्या सकते। So you are not self-made like Trump. I am not self-made like Trump. Nothing like him at all, right? So ये चीजें देखने की जरूरत है कि जी हमारे गिर्द जो है इन्वायरमेंट, हम बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि ह्यूमन सेंट्रिसिटी, ठीक है ना? अब भी आपको सेंसिटिव होना है, अब भी आपको ऑब्जर्वेंट होना है, अब भी आपको अपने इर्द गिर्द देखना है। मुझे याद है, मुझे सुलेमान शाहिद जो है, उन्होंने मुझे एक दफा कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा टेलीविजन के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने मुझे अमानुल्लाह का कहा, हु वाज अ कॉमेडियन, द लेट अमानुल्लाह हु रिसेंटली डाइड। उन्होंने कहा कि किसी तरीके से आप अगर अमानुल्लाह को बुला सकते हैं लम्स, बिकॉज हिज कॉमेडी इज ओनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन,
मैंने फिर अमानुल्लाह से बात की and he was thrilled कि उनको हम लम्स बुला रहे हैं. I wanted to call him over but he fell ill and he couldn't come. तो अभी भी आपको ये कोविड और पोस्ट कोविड जो डिस्कशंस हो रही है, the world will be a changed place, right? So we have to think of it in that manner कि ये दुनिया बदलेगी, लोगों का बिहेवियर बदलेगा, उनके मसाइल भी बदलेंगे. उन मसाइल को समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी. और जब आप समझेंगे किसी का मसला, तभी आप उसके लिए कोई सोल्यूशन बना सकते हैं. प्रोटोटाइप करें, और प्रोटोटाइप करने का मकसद एक ही होता है कि आप क्विक टेस्टिंग करें, ताकि आपको पता चले. जो फैसल ने भी बात की कि हो सकता है मैं प्रोडक्ट बना लूँ, 4, 5, 6, 8, 10 लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन स्केलेबिलिटी, क्या वो 1000, 10,000, 1 लाख लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? ये है सारा एंटरप्रेन्योरशिप का पर्सपेक्टिव. ठीक. So the message that I'm getting is the clear understanding of the actual problem is really important before you go into trying anything out with the customer. So फैसल, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, this is from audience. जुनेद ने पूछा है, कुछ और भी I think लोगों ने पूछा है कि is it wise to go ahead with a niche product with small market, and particularly you work with a lot of startups and you also work in HP. So there's a very good question कि how do you address the cultural aspect of product, particularly कि एक project multiple regions or multiple countries में अगर आपको place करना है, तो how do you go about doing that? That sounds like a very complicated thing to do. That's something as a product guy, if you're launching a product worldwide, something you deal with on regular basis. So इसमें एक important चीज ये है कि when you are building a product, so there are a lot of things that go into the overall thought process or into the overall launching a product. So product जो है आपके किन countries में वो available होगा. If it's a hardware product, depending on where the product is built, it also determines which countries you can ship to. If you're planning to build a product, if it's not built in certain countries, you cannot ship that product to, let's say, any government institute. So those are the things that you gotta keep in mind. Is certain verticals, they have there could be, let's say, if I look into the cloud technologies all the time, let's say, especially on the connectivity side, it's a $30 billion market. So okay, so the $30 billion market may, if you're playing in that market, is that something that you can address all of it? So the answer will determine based on all the questions that you're going to answer. So, okay, where you are going to build the product, and based on where the product is built, आप किस countries में उसको ship कर सकते हैं. And after that, like even उसके बाद जो next thing that come into the picture is every country has their own requirements. Okay, the product should be certified or homologation. There are like a lot of things that go into a product launch. So it's not an easy answer. Like so overall, आपको जो है, when you're building a product, is if you're a startup, you want to focus on something which where you can you have an easy approach to. Like you can address that market directly. You have a very good knowledge about that. If something like you have a subject matter expert, if you're a large corporation, then obviously there are teams who are helping you go out and do all that work for you. ठीक. So coming to you, Shahid, and we've talked about again the human connection and emotional aspect of things. And I, as I'm a philosophy of product kind of guy, and I love that conversation. But as much as I love it, I have to ask this question, and I'm glad this came from the audience as well. So, so that what is the measurable metrics of a product market fit when you are working on something like this? So, what's the measurable metrics that you can use to say, now I have a market product fit? The day you start making money at a profit. Mm-hmm. I think that's the rest doesn't matter. So how soon you get there is up to you then. It's completely up to you. Yeah, सही. I think the sooner the better. Yeah, sooner the better. और उसमें वही traits आ जाते हैं. अगर इंसान is a amazing listener, has humility, and you listen very carefully
So don't consider it as an attack on you or your idea or your product. So you have to flip it around saying, मुझे इस target customer के बारे में जितनी भी knowledge मिल जाए उससे मुझे benefit होगा. और अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि आई थिंक फैसल शेरजान ने ये कहा था कि गुड पीपल आप सब लोग एक नया वर्ड अडॉप्ट कर लें और उसका वर्ड का नाम है एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन और मैंने अभी तक ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है या मैंने अल्फा किया या मैंने बेटा किया है. The reason I use the word experiment can be this or this. Experiment is a learning process. Here is what happens with a proof of concept. मैंने कमिट कर दिया अपने बॉस को कि जी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो जून 3 को वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, और दरमियान में वो पता चला ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है. What is the likelihood कि मैं उसको जाके कहूँगा कि जी बॉस साहब ये तो चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है. Corporate world does not allow people to take calculated risks. Everybody is risk averse. Lekin as an entrepreneur, you have a complete freedom to pivot every single day as you learn more and more. And this is how you get traction. और traction कैसे है? जब आपकी adoption increase हो रही. Traction कैसे है? जब आपके पहले 2 customer 4 और को बताएं, वो 4 जो है वो 20 को बताएं. That's what traction is. तो उसका जो adoption होती है, it's a hockey stick like curve. Once you start to see it, you're on your way. Is it easy? No, it's not easy. But this is what entrepreneurship is all about. Absolutely. And if I understood it right, what you mean by the whole experimentation versus proof of concept thing is that probably the pressure on you when you're building a proof of concept is कि आप successful हो. जबकि experiment में the idea is to come up with the result. Now that could be a failure, that could be a pass, and I think that's the reason behind when you say use the right word choice of word is very important. So coming to Ali, yeah, sorry, Deep, please go ahead. Shahid. जब आपकी एक्सपेरिमेंटेशन आपको लेके जा रही है, अडॉप्शन आ रही है, तो उस वक्त यू स्टार्ट टू डेवलप अ पीओसी दैट इज मोर टेंजिबल. जैसे अली ने कहा था, यू एक्चुअली डोंट हैव टू हैव एनीथिंग. आप गत्ते का डब्बा बना के ले जाएं, पूछे कि भी कैसा फील हो रहा है. सो यू डोंट हैव टू हैव अ प्रोडक्ट, बट यू हैव टू डिलीवर द एक्सपीरियंस जो आप बना रहे हैं. उसकी फिजिकल शेप हो सकती है, उसकी डिजिटल शेप हो सकती है. आई एम सॉरी यासिर, प्लीज. So I think this is a great time to ask this question क्योंकि अब बात आ गई product पे और experience पे, and this hasn't come from the audience right now, but I think this is the most asked question that I get and the biggest problem that I generally feel as well. जब हम product बना रहे होते हैं अली, so मेरा आपसे सवाल ये है, a lot of people are concerned about कि मेरी product पे कितनी नज़र है customer की, and I always end up asking this question कि what do you think entails a great product? A great product होती क्या है? So for in your opinion, how important it is for a product कि वो आपको नजर आए और आपके रास्ते में हो, या it does its job, and what kind of product is a great product that maybe sits on the side and does its job and instead of being in the way जिससे आपको interact भी करना जरूरी ना हो या हो जरूरी. मेरे ख्याल में आई वुड लाइक प्रोडक्ट्स जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दें और मुझे कभी उनके बारे में सोचना भी ना पड़े या देखना भी ना पड़े मुझे उन्हें. आई थिंक सो बेसिकली जो और इसी सारी चीज़ को जब मैं सोच रहा होता हूँ तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कि अगेन गोइंग बैक टू द कोर प्रॉब्लम, यूज़र की प्रॉब्लम क्या है और आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं एक यूज़र की ज़िंदगी में, आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है. जो जिस चीज़ से हम सारों को एज एन एंटरप्रेन्योर जिस चीज़ से गर्ज होनी चाहिए और जिस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए वो वैल्यू है. और वैल्यू को जो ट्रिकी पार्ट होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी होता है कि वैल्यू को कभी कभी डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल होता है. तो इसलिए आपको फिर और चीज़ें देखनी पड़ती हैं. बट फंडामेंटली अगर आप बाकी सारा कुछ कर रहे हैं और वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे तो इस सारे कुछ का फ़ायदा नहीं है. और अगर बाकी आप कुछ भी नहीं कर रहे, एक गंदा यूज़र एक्सपीरियंस है, एक गंदा प्रोडक्ट है, लेकिन वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है और आपके पास एक क्लियरली मेजरेबल तरीका है जिससे आपको पता चल रहा है कि वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
I had a couple of questions that I wanted to ask all of you, but in favor of time, I would be directing questions. Okay, we are only left with a few questions, but हमारे पास time खत्म हो गया almost. So Faisal, my question to you would be, हमने market trends की बात की, and you're certainly someone who's in a position that you do get to look at the market trends and everything. So what do you do when you miss one? Okay, entirely miss one. Here was a trend that we had to capitalize on, but हमने completely miss कर दिया. And if you could tell us some personal experience about the biggest mistakes that generally you have done when it comes to product development that you really learned from. So I think making mistakes is a part of the journey. So I think is a famous saying that if you are afraid to make mistakes, that you end up working for someone who has made a lot of mistakes in their life. So you should not be afraid of making mistakes, as long as like there are you're learning from your mistakes, you're not repeating your mistakes. तो entrepreneurship world होगी या फिर इसमें especially when you're very early on, you are going to make a lot of mistakes. But as long as you have a vision, you're focused, and you have a strong team, so there is the chances of success becomes high if you have done all of that homework, or if you are on the right track or right trajectory. So overall, personal mistakes obviously is, I will give you an example of in my previous lives, like when I was working for a large company. I think we started working on a product. We got some very early market feedback that it is something that's needed for especially for the product was targeted for telecom service providers. So when so initially we got some really good feedback, but overall during the development cycle we missed quite a few marks. And then in the meanwhile, the market completely shifted, and with that shift, it's the desire for such solution was not as high as it was like about a year ago. So it's so that's where we pivoted, and we started doing we started working on a parallel strategy to move everything into a like a different offering for the same market, same segment. CME was the segment, like communication, media, and entertainment. That was the particular segment that we were going after. So, but overall, it was something where it took us almost 6 to 8 months to realize where that we have missed the mark, and it's something where we need to pivot and try to figure out where we go from here. So I think that's one personal examples. And the other things that I would say, let's say if you have whenever you are in a product role, you're always looking at there are a few things, like there are like 3 strategies like you're always look into. Like, so one is like if you have an existing products, how you can find new verticals for your existing products. So that's strategy number 1. The next thing is like partnerships. Partnerships are important, right? So if you have existing products and it takes time to build new organic products. So in the meanwhile, first of all, the first thing you did was you're trying to find the new verticals for your existing products. The second thing is you're building partnerships. If you can come up with a combined offering, it may be, if you're working for a large corporation, maybe you combine your offering with another product, and you have a solution that you can offer to the customers. The third thing is obviously like the organic growth. So the organic growth sometimes takes time, especially in the large organizations. So that's where you're building new product and launching them. So that's like overall, that's the 3-part strategy overall, like I always look at. ठीक हो गया. So FSJ, short and quick answer. Is there so Taha, I asked Bhushan, is there anything else we should be doing during the interviews or surveys, and how do we interact with the customer? And Shahid already talked about being a good listener.
बट और क्या करना चाहिए? बिजली के झटके लगाने चाहिए कस्टमर को, या make them feel comfortable? What other techniques you use when you're talking to people to make them speak and make them sort of make them open up? I think शायद touched on that also. उन्होंने कहा कि जी बेशक गत्ते का डब्बा बना के ले जाएं और कहें जनाब ये गाड़ी है, आप बताएं ये गाड़ी जो है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपके पास जो गाड़ी है आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो है ना एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है ना वो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ज़रूरी नहीं है कि वो फिनिश प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जो हर फीचर उसमें शामिल हो. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, मिनिमम वायबल सोचना है आपने कि सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट सिंगल वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू वाली लेके जाएं. आफ्टर यू स्टडीड योर कस्टमर, पहली चीज तो वही है कि आपने अपने कस्टमर को स्टडी करना है, उसके साथ बैठना है, उसकी जिंदगी को समझना है, उसकी प्रॉब्लम को और उसकी प्रॉब्लम की एक्सटेंट को और किस किस्म की उसकी सोल्यूशन जो है वो आप डिवाइस कर सकते हैं. जब वो आप कर चुके हैं तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेज है, और उसको जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको जो है वो डीपर इंसाइट मिलनी शुरू होगी. एक तो ये है. दूसरा, मेरे अपना जो एक्सपीरियंस है और ये हम बात भी करते हैं कि आपने देखना है कि मेरी रेलेवेंस किसको है, जो मैं सोल्यूशन डिजाइन कर रहा हूँ वो किसके लिए रेलेवेंट है. वो कस्टमर रेलेवेंसी जो है वो अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब रेलेवेंसी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो फिर रिप्रेजेंटेशन आती है कि वो किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसको जब आप कर लेते हैं तो फिर आती है उसकी रेजोनेंस, जो वायरलिटी जिसको हम कहते हैं. अगर वो रेजोनेट करेगी वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक कस्टमर के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, तो उसको फिर आप जो है स्केलेबिलिटी की तरफ आप सोच सकते हैं कि ये स्केलेबल प्रोडक्ट होगी. अदरवाइज आपके पास बहुत अच्छी, और एंड वी नो सम ग्रेट कंपनीज इन आवर ओन लाइफ टाइम्स, they had great products but they lost touch with the customer. Nokia is one of those companies. If you just dial back not more than 15 years ago, we will find that Nokia had 70% market share and they were making great phones. And then what happened? They lost touch. And suddenly, I think Nokia now is almost out of the phone market. They're trying to come back. They're constantly trying to come back. But just imagine what happened to them, right? How fast they went out. It didn't even take more than 4, 5, I think maximum 5 years. And they started losing traction, right? So product jo hai is not a static thing. It's a very dynamic thing. You have to look at, how customers use your product. What do they do with it? We know BlackBerry, right, was one of those phones that everybody used to live by. It had some features that were critical. But in a different world, it is now a product that is gone, right? So we got to think. Kodak is another one, right? Kodak jo hai, we grew up with the Kodak moment. And then suddenly everything changed and customer behavior changed, right? So, all these things impact the kind of product that you want to put out, its journey, its development, right? It's not a static thing, it's a dynamic thing. I believe you have touched upon a very important point. That is कि we use the word disruption a lot when it comes to startups. जब हम खुद काम करते हैं, जो चीज़ हमें realize करने की ज़रूरत है, I think वो ये है कि we are disrupting someone, and probably वो जो business है, they fail to continuously reinvent themselves and align themselves with the customer, and we will be that business one day if we don't have the right mindset. So this brings us to almost the end of our conversation. Shayad, I have coupled a few questions for you, and कुछ audience से मैंने कुछ to the audience, there are some questions that I won't be able to ask because time इतना नहीं है, but there are a lot of questions that I am intentionally missing because वो बहुत सारे different sessions से related हैं जो आगे NES में होने वाले हैं, particularly when it comes to marketing strategies और इस तरह की चीजें. So वो questions will be answered. Those questions will be answered in relevant sessions. So someone talked about firefighting, and I think they kind of like misinterpreted the term firefighting itself. कि अगर मैं कस्टमर को ही देखता रहूँगा और वो जो उसको चाहिए वो बनाता रहूँगा, तो मैं एक प्रोसेस पकड़ा और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ या इम्प्रूव कर रहा हूँ, and I'm where am I innovating. But शायद I have a few questions for you. So firefighting is one thing. किसी ने बोला कि फिर मेरी गट फीलिंग का क्या होगा अगर मैं कस्टमर की ही बात सुननी है, तो फिर मेरी गट फीलिंग का क्या, मेरे जज्बात का क्या. And the last question that I have for you is,
there is a general belief कि जो growth mindset है ये कोई एम्पैथी माइंडसेट के मुकाबले में खड़ा है और ये कोई जंग चल रही है आपस में. क्या ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं? क्या ये एक ही चीज है? क्या एक के बगैर दूसरा हो नहीं सकता? What's going on over there? So that would be my last question in this session. जी शायद. आपका लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैंने पहले कभी कपलिंग नहीं सुनी थी. इनफैक्ट ग्रोथ माइंडसेट और एम्पैथी आर लाइक ट्विन्स. दे गो टुगेदर. एब्सोल्युटली दे गो टुगेदर. और गट फीलिंग, अगर आपने गट फीलिंग अपना पैशन है तो आप कोई जाके फिल्म देखें, अपने गट को सेटिस्फाई करें, क्योंकि आपका गट डजंट मैटर टू द कस्टमर. आपका फोकस है कस्टमर की पेन पॉइंट्स पे और उसको कैसे डिस्कवर करना है. जब वो डिस्कवर हो जाएंगे फिर आप जो भी गट के साथ आइडिया लेके आएंगे, पैशन के साथ आएंगे, दैट इज हाउ यू गोइंग टू सक्सीड. द एंड यूजर इज द क्वीन एंड द किंग, जिसके सामने आपने जाके मत्था जोड़ना है और पता करना है उस किंग और क्वीन की क्या इश्यूज हैं. दिस इज हाउ यू डिस्कवर great ideas, great problems to solve, and then find a solution and you'll be successful. I think so. The general, यासिर, ये almost मेरी दूसरी इफ्तारी का टाइम हो गया. Yeah. So this. So I really appreciate everyone on the panel. Thank you so much for making it, especially the guys who are in US. I know it's probably really late at night at your end. I think one of the important lessons to be learned here is that in the world of product design, the product designers don't matter. And once you understand that there is no conflict between the gut feeling and the customer need, there is no conflict between the growth mindset and the empathy mindset, because empathy mindset ke bagair your business will never grow. So I think it's at the end it's all about eliminating ego out of the equation. So thank you so much, guys, for such an interesting and informative conversation. Thank you so much to all the people who have been listening in patiently. We had about 160 plus people join in this webinar. So I would hand it over to Kaleem without further ado, ताकि और लेट ना हो जाए. So जी Kaleem, over to you. बहुत बहुत शुक्रिया यासिर. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा. I just wanted to thank our partners, Patari, हमारे broadcast partners जो कि इसको live कर रहे हैं. पाकिस्तान स्टार्टअप्स ग्रुप इसको live करेगा, इसको host करेगा बाद में. सिर्फ मैं जितने audience के questions पे quickly comment करना चाहता हूँ. सिर्फ एक आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि इन बिटवीन सेशंस या सेशन से पहले अगर आप उस टॉपिक पे कुछ थोड़ी सी स्टडी कर लें, medium.com से, entrepreneur.com से कुछ पढ़ लें और उसके बाद आके अगर क्वेश्चंस कर लें तो दे so this 1.5 hours this is for for so many questions. कुछ questions मैं देख रहा था, there people are asking about their businesses. We understand and respect कि आपके अपने business के बारे में सवाल हो सकते हैं. The problem is कि that cannot be managed in such a large audience. तो अगर आप कुछ ऐसे सवाल कर लें जो कि different startups groups को या let's say सब लोगों को represent कर रहा है, that is we will request कि अगर आप उसका थोड़ा सा कर लें. जो कुछ बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल हैं, अगर आप लेट्स से अगला सेशन हमारा 12 बजे ग्रोथ हैकिंग पे हो रहा है, इन बिटवीन दिस टाइम 1 घंटा आपके पास है. अगर आप ग्रोथ हैकिंग पे थोड़ा सा जाके पढ़ लें कि होती क्या है, एक्सटेंडिंग द रनवे का क्या मतलब है, उसकी क्या बेसिक टिप्स हैं, तो trust me, you will get much. This session will turn much more fun. Thank you very much. Everyone, people from Bay Area. I mean, this is the beauty of Zoom. In the previous NES, we had speakers from Lahore. We had to host. So we had to host 110 entrepreneurs from all over Pakistan in Lahore. 4 दिन physical उनको accommodation करवाई सब कुछ. I mean, this is just great. I'm already loving it. There are 19 sessions to go. So कलीम जरा अगले 15 दिन की इफ्तारी और सहरी पार्सल कर दो उससे FedEx से हम सब के लिए. Parcels भी बनते हैं कुछ ऐसा. That'll be the pay forward. Right. All right. So I mean, for Monday session, I have got some people from East Coast जिनका रात के 2 बजे होंगे. वो सेशन भी थोड़ा सा लेट है, तो they promised me कि वो अलार्म लगा के करेंगे. I mean, I can only salute commitment from people who are joining us from that part of the world and that just to help Pakistani entrepreneurs.
फैसल साहब, अली रेहान, ऑल्दो मैंने शाहिद साहब से 3-4 दिन पहले कहा था, फैसल और अली से आई जस्ट spoke a night before के सेशन है कल, and they kindly agreed for this session. So sir, thank you very much for your time. And our next session is 12 p.m. जो लोग edtech works को समझना चाह रहे हैं, बल्कि मैं उस पर भी लोगों से दरख्वास्त कर दूं, मैं आपको, so we'll take like 5 minutes. Dr. Farah is already here. We'll take 5 minutes. अगर सवाल आप लोग सेशन से पहले वहां पे पोस्ट कर दें, हमारे लिए समझना आसान होगा. There were at least 6 places जहां पे मैं सवाल गैदर करके we were just trying to make sense of them. तो जिनके सवाल नहीं आंसर हुए, बहुत माजरत. Next time please post on edtech works and we can do better job at clubbing them. So thank you very much, Ali, Shahid Saab and Faisal Saab. Thank you very much. All right, so attendees, just give me a second. Firstly, we need to stop this live feed.